Senior officials and dignitaries, representatives of Brahmakumaris, volunteers of Nasha Mukta Bharat Abhiyan, community leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I extend my heartfelt appreciation to the Department of Social Welfare, Brahmakumaris, NTA, Narcotics, Task Force of State, and all the other members of Nasha Mukta Bharat Abhiyan for organizing this important program on drug abuse and awareness. Though I am unable to be physically present because of my health reasons, I am deeply committed to this cause. I was honored to flag up the Nasha Mukta Bharat Abhiyan vehicle today. This vehicle will carry a message of hope, awareness, and responsibility across the state. Drug abuse is not only just a personal problem, it affects families, communities, and youth who are future of our society. The fight against substance abuse requires collective willpower, awareness, and consistent action. Through this campaign, we aim to reach out our youth and encourage them to make informed, healthy choice. I also acknowledge the role of spiritual and educational institutions like Brahmakumaris and Rajoga Education and Research Foundation in guiding our youth towards positive values, inner strength, and a life free of addiction. Drug free Meghalaya is a mission of my government. To fulfill this mission, in 2023, Meghalaya government has launched a holistic mission mode program named DREAM, or the Drug Reduction, Elimination and Action Mission, with different stakeholders to make Meghalaya drug free or Nasha Mukt state. This is the first ever holistic drug reduction program of the nation launched by any state. Last year in December, in a holistic movement, all the traditional leaders and representatives of district council of my state, along with me, has taken a firm oath to come together to make Meghalaya Nasha Mukt as a community commitment. Let us work together to build a Meghalaya that is strong, aware, and free from grip of drugs. Kuble, Mitela, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Meghalaya. ओम शांति खुबले मिथिला वंदे मातरम. Honorable Governor of Meghalaya Sri C.H. Vijay Shankar sir, on whose initiation and is the source of inspiration for organizing this program. So, but he could not join in person, but he flagged off the today's program to make Meghalaya drug free. So, we all are very, very grateful to Honorable Governor sir. I welcome my friend Praveen Bakshi ji. He is very dynamic person and he always behind the curtain but designs the program which is very unmatched. So all the and his team working for the DREAM mission and all the members from the DREAM and Social Welfare Department. It's our privilege and we are the part of the team of the Rajbhavan or our state government. So on behalf of the state government side, now it's our privilege together jointly to welcome Brahmakumari mission for this Nasha Mukt Bharat Abhiyan in this Darbar Hall and in Meghalaya. They took very much effort to come here, like Dr. Jagdish Shah ji. आप सीधे पहले आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा था, लेकिन कल आप सीधे माउंट आबू से इस प्रोग्राम के लिए पधारे, सारे प्रोग्राम छोड़ करके. हमारी दीदियां हैं जो इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही कमिटेड हैं और आपका कमिटमेंट हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हम लोग इस नशा मुक्त भारत अभियान को मेघालय राज्य में एक टीम की तरह
सब मिल करके कार्य करेंगे और मेघालय को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपना पूरा योगदान देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बहुत ही ग्रास रूट पर मुस्तैदी से काम कर रही है। मेघालय नशे के हमारे जो यूथ हैं काफ़ी तेज़ी से नशे का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो मेघालय एक पहला राज्य बना है जिसने इसके लिए एक मिशन मोड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ड्रीम। और ड्रीम प्रोजेक्ट ही हमारा सोसाइटी का एक ड्रीम है, हमारा सपना है, और इसके लिए हम सब लोग एक साथ एक टीम की तरह डेडिकेटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम मेघालय को ड्रग फ्री मेघालय बनाएंगे। इस मिशन में जो भी लोग, जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और राजभवन की तरफ से जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने हमें निर्देशित किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिस राजभवन इज ऑलवेज देयर पार्ट ऑफ दिस ड्रग फ्री मेघालय टीम at each and every stage. So once again, on behalf of Meghalaya, I welcome the Brahmakumari mission and all the stakeholders who are present here for this very noble mission to make our future bright. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Khule. Om Shanti. Good morning. Welcome all of you. Today we will take the pledge of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. I pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan that I will not use any intoxicating substance and will contribute to making my family, society and country free from substance abuse. I will also motivate others to stay away from drugs and will spread awareness about the harmful effects of addiction. I will work with full dedication to make my country healthy, strong and drug free. Thank you. Om Shanti. ओम शांति, ओम शांति। इस सुंदर समागम में, राजभवन के सुंदर ऑडिटोरियम में, पहले तो हम हमारे माननीय श्रद्धेय तेजस्वी वजस्वी हमारे गवर्नर साहब का हम हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी इतना सर ने टाइम दिया और हम सब में उमंग उत्साह बढ़ाया और आश्वासन दिया कि राजभवन हम नशा मुक्त के लिए ऑलवेज तैयार हैं। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मेघालय के गवर्नर साहब को हम हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ा हर्ष की बात है, ब्रह्मा कुमारी सरकार के साथ तो 2024-23 से हम साथ काम कर रहे हैं। हमारे मेडिकल विंग में 4,500 सीनियर डॉक्टर हैं, बीएम कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, अनेक प्रकार के डॉक्टर हैं। और हम सब ने मिल करके रिसर्च किया है कि मेडिटेशन से नशा कैसे दूर हो सकता है, मेडिटेशन से बीमारियां कैसे दूर हो सकती है। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा अलग से बात करूंगा। मेडिटेशन से जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आपके फैमिली फिजिशियन कहते हैं कि भाई आपको बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, एंजियोग्राफी कराइए। वो व्यक्ति एंजियोग्राफी कराने जाता है, उसकी 4 आर्टरी ब्लॉक 100%, 99%, 85%। दूसरा कैल्सिफिकेशन हो गया है, चूना जम गया है। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि मैं एंजियोप्लास्टिक नहीं कर सकता हूँ, बाईपास भी बहुत डिफिकल्टी से होगा।
ऐसे पेशेंट को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं। 8 दिन उनको अपने आश्रम में रखते हैं, प्लांट डाइट देते हैं, प्योर वेजिटेरियन डाइट देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और उनको घर भेजते हैं। 6 महीना के बाद, आफ्टर 6 मंथ, वो व्यक्ति 4-6 किलोमीटर घूम के आता है। उसके परिवार वाले चिल्लाते हैं, वाइफ चिल्लाती है, बच्चे चिल्लाते हैं, रिश्तेदार चिल्लाते हैं कि भाई आपको 4 आर्टरी ब्लॉक है, हमारे सामने डॉक्टर ने बोला है और आप सुबह सुबह 4 किलोमीटर घूम कर आते हैं, कल से नहीं जाना। पेशेंट बोलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पसीना नहीं आ रहा, मुझे पेन नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो रोज रोज परिवार में झगड़ा करने के बजाय वो सीधा सेम डॉक्टर के पास कैथ लैब में जाता है, एंजियोग्राफी कराता है। डॉक्टर एंजियोग्राफी करके कहता है कि आपका चारों आर्टरी क्लीन है, आपने क्या किया, कौन सी दवाई खाई, चारों आर्टरी 6 महीने में क्लीन हो गया। तो उसने बोला कि कोई दवाई नहीं खाए हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जाकर के मेडिटेशन सीखा है, प्लांट प्योर वेजिटेरियन डाइट लिया। इतना यूनिक रिजल्ट है। एक के ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, 100 के ऊपर नहीं किया, 1000 के ऊपर नहीं किया है, 15,000 लोगों का ट्रीट क्लीन किया है। इतना मेडिटेशन का असर है। उसी तरह बहुत सारी एनजीओ भारत में नशा मुक्ति पर काम कर रही है, लेकिन लोगों को रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। जब भारत सरकार को पता लगा तो सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने दादी जी को लेटर लिखा, दादी जी आप भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, हम क्यों न मिल करके MOU साइन करें और सेवा करें। दादी जी ने स्वीकृति दिया और दिल्ली में शास्त्री भवन में 4 मार्च 2023 को MOU साइन हुआ। MOU के वक्त हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी उपस्थित थे, स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले उपस्थित थे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबके सामने साइन हुआ और उन्होंने कहा कि आप 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए। हमने 3 मास का रिपोर्ट जब प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि पूरे भारत से आपने रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पूरे भारत में आपने ये कर दिया। हम सर को बताया कि सर पूरे भारत में हमारा आश्रम नहीं है, 140 कंट्री में, 140 कंट्री में हमारा आश्रम है। एक आवाज हम माउंट आबू से, राजस्थान से, हेडक्वार्टर से देते हैं, 140 कंट्री में आवाज जाता है। तो 140 कंट्री का हम रिपोर्ट दे सकते हैं सर। तो उन्होंने कहा कि रोज रोज का रिपोर्ट दीजिए। हम रोज रोज का रिपोर्ट सरकार को शाम को इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके मीडिया पर भेजते हैं और 3-3 मास पर हम रिपोर्ट देते हैं। हम अपने बहनों से कहेंगे कि ये रिपोर्ट का कॉपी आप लाए हैं, आगे बैठे हुए सभी अधिकारियों को एक कॉपी आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जब हम ये किया तो नारकोटिक डिपार्टमेंट, NCB, उन्होंने कहा, डायरेक्टर जनरल गर्ग साहब, अश्वनी गर्ग जी, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ MOU करना चाहते हैं और 2 दिसंबर स्वतंत्र भवन में MOU साइन हुआ और 8 दिन के बाद सर का फोन आता है कि आप भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका आश्रम है, सभी सीनियर सिस्टर का नाम और मोबाइल नंबर मुझे दीजिए। हमने पूछा सर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी, हमारे स्टाफ बहनों के पास जाएंगे और उनसे मिल करके प्रोग्राम बनाएंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेक्चर रखा जाएगा इनका। हमने लिस्ट भेजा और नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे आश्रम पर जाकर के बहनों से राय करके स्कूल, कॉलेज में एक लेक्चर का अरेंज करते हैं सरकार के साथ। हमने एक स्कूल का आपको बात सुनाना चाहूँगा। इस तरह के जो आपने
गाड़ी देखा आज राजभवन में, इस तरह के 27 गाड़ी हमने पूरे भारत में चलाई है। और ये गाड़ी स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह जाती है तो बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। एक हाई स्कूल में हमारी गाड़ी गई और प्रिंसिपल ने देखा तो 1000 हाई स्कूल में बच्चे थे, उन्होंने अपने हॉल में इकट्ठा कर दिया। हमारी बहनों ने नशा के बारे में 1 घंटा लेक्चर दिया, उसमें 25 बच्चे थे गांव के। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं, मीडियम वर्ग के जाते हैं, और हमारे हायर लेवल के रीच परिवार के बच्चे प्राइवेट में जाते हैं। तो वो बच्चे गांव से आए थे और दोस्तों के पीयर प्रेशर में, दबाव में आकर के व्यसन लेना सीख गए। अब व्यसन की तलब होती है तो गरीब माँ बाप, गांव के किसान के बच्चे, गरीब माँ बाप मुश्किल से कपड़ा देता है, स्कूल का फी देता है, लिटरेचर किताब देता है, भोजन देता है, 5वें चीज के लिए उनके पास साधन नहीं है। अब उन बच्चों को तलब होती है, वो तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। उन लोगों ने ग्रुप बना लिया, हम कब तक रोते रहेंगे, कब तक चिल्लाते रहेंगे। ग्रुप बना करके उन लोगों ने निर्णय कर लिया, चलो हम सुसाइड करें। सुसाइड करने के लिए रिवर ढूंढ रहे थे, पॉन्ड्स ढूंढ रहे थे, ट्री बड़ा ढूंढ रहे थे जहां लटक करके सुसाइड करें। हमारी बहने 1 घंटा लेक्चर दिया, उनके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, वो सीधा उठ करके प्रिंसिपल के चैम्बर में चले गए। सर, मेरा जान आपने बचा दिया। प्रिंसिपल हैरान हो गया कि मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारा जान हमने कैसे बचाया? अब तो नहीं सर, हम आपके स्कूल के छात्र हैं, 1000 को बाई फेस पहचानना आपके लिए डिफिकल्ट है, मैं समझता हूँ। हम यहाँ गांव से आए हैं, दोस्तों के दबाव में आकर के व्यसन सीख लिया। तलब होता है तो हमारे को न माँ बाप पैसा देता है, न कहीं से पैसा मिलता है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, व्यसन कहाँ से खरीदूं, और हम सब रोते हैं, पीटते हैं, अपने आप को सजा देते हैं। कब तक देंगे? तो हम सुसाइड करने जा रहे थे, और आज इन बहनों के लेक्चर से प्रेरणा आई है कि सुसाइड करने के बजाय हम व्यसन छोड़ भी सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा, यू प्रॉमिस? बिल्कुल सर, प्रॉमिस। प्रिंसिपल ने आके कहा कि दीदी आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा, हम बहुत जरूरी काम से ऑफिस में अपना काम करते रहे, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम आपको रोज 1 घंटा टाइम देंगे, आप रोज आइए। और उस हाई स्कूल में हमारी बहनें रोज जा करके वैल्यू के ऊपर उनको लेक्चर दिया, नशे के बारे में नुकसान क्या है, आप कौन हैं, सारी जानकारी दिया। उस सभी बच्चों ने व्यसन मुक्त हो गए। उस स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया। इस तरह से अनेक स्कूल की बातें हम आपको सामने रख सकते हैं। इतना अच्छा रिपोर्ट है, मैं क्या बताऊं। ये गांव में जाते हैं, जेल में जाते हैं, वहां जेल सुपरिटेंडेंट खुशी से सभी कैदियों को अंदर इकट्ठा कर देता है, उनको समझाते हैं, वैल्यू के बारे में बात करते हैं, उनको बताते हैं। उनको गुस्सा में होते हैं, नाराज होते हैं। कई कैदी ऐसे होते हैं जो कसूर नहीं किए हैं, फिर भी उनको जेल में डाला गया है, वो बड़े अंदर से दुखी हैं। उनको बताया गया कि कुछ भी हुआ, अब उस दुख को रिपीट करोगे तो क्या मिलेगा। तो इसलिए अब प्रभु चिंतन करो, मेडिटेशन करो। उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर में साइलेंस की अनुभूति होती है। मेडिटेशन हम किससे करते हैं? कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं करते हैं, डायरेक्ट गॉड से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, अल्लाह से करते हैं। अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है? उससे न पीस है, उससे न लव है, उससे न पावर है। उससे लव, पीस, पावर मिलती है, सदा फ्रेश होते हैं। अगर हम नशा क्यों लेते हैं? काम करते करते थक जाते हैं, कोई स्ट्रेस आता है, ऑफिस का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, अपने शरीर का, तबीयत का स्ट्रेस होता है, तो हम नशा शुरू करते हैं। एक सिगरेट पीते हैं, थोड़े दिन के लिए रिलैक्स होते हैं, फिर 2 घंटे के बाद और स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन गॉड से हम मेडिटेशन करते हैं तो सारा टाइम हमको डोपामाइन रिलीज हो। ओम शांति।